اس بات پر دھیان کریں گے بائبل مقدس میں کہ خدا کے مقدسوں نے کیوں ایمانداروں کو خط لکھے، اور خط لکھنے کے بعد ان میں جو آگاہی، نصیحت، تربیت، ان کے حالات کو دیکھا، ان کی زندگی کو دیکھا، اور اس بات کو سامنے رکھا کہ ان کی زندگی کیسے بننی چاہیے، وہ کیسے قائم رہ سکتے ہیں۔ تو ایمانداروں کا خط لکھا اور کہا کہ اب ان کی زندگی کیسے بن سکتی، اب ان کی زندگی کیسے قائم رہ سکتی، اب ان کی زندگی فتح کیسے ٹھہرے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو تم کو مسیح یسوع میں اس بادشاہی میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو آپ نوٹ کریں، ہم سب، بلکہ جہاں کہیں بھی کوئی یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، بائبل مقدس کے مطابق وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں اس ابدی مقام میں داخل ہوں گا، میں اس کو میراث میں لے لوں گا، میں راست باز ٹھہرایا گیا۔ تو وہاں جانے کے لیے کوشش جاری ہے سب کی۔ مسیح یسوع نے خود کہا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ میراث جو بنائے آدم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ ہم جو بلائے ہوئے ہیں، ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک درجہ ہے خدا کی نظر میں، ہماری ایک ویلیو ہے اس دنیا میں، ہماری بائبل مقدس کے مطابق خدا کی نگاہ میں ایک قدر ہے، اور اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، اور پھر ثابت کرنا ہے، دکھانا ہے یہ کہ ہم ہیں کون۔ جو بات ہم سیکھنے کو ہے، ثابت کرنا ہے اپنے بلاوے کو اور اپنی برگزیدگی کو ثابت کرنا۔ تو یہ تینوں بات سیکھیں، بلاوا، برگزیدگی، اور پھر اس کو ثابت کرنا۔ بائبل مقدس میں کیا سکھاتی ہے؟ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے اس حوالے کو دیکھیں گے، لکھا ہے، اے بھائیوں، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اس کا فائدہ ہے۔ پہلا کرنتھیس کا خط دیکھیں اور اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 26 سے پڑھیں تو یوں لکھا ہے، پڑھیں۔ اے بھائیوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ جی، اے بھائیوں، اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ کیا نگاہ کیا کرنی، کیا دھیان کرنا ہے؟ نظر کرنے کا مطلب، نگاہ کرنے کا مطلب غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے اپنے بلائے جانے، کیونکہ ہم نے اس کو ثابت کرنا ہے، اس بلاوے کو، کہ ہمارا بلاوا جو ہے اس کو ثابت کرنا ہے۔ تو نگاہ کرنی ہے اپنے بلاوے پر۔ بہت سی زندگیاں ہیں جو ایسی جگہ میں انٹر تو ہو جاتے لیکن اس کے قوانین کو سمجھتی نہیں، اور اگر قوانین کو سمجھیں گی نہیں تو اس کی سزا وہ پائیں گے۔ بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ دیکھیں کیا ہے، جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف، جسم کے لحاظ سے اس بدن کو رکھتے ہوئے اور اس لحاظ سے جو جو کمیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اس لحاظ اس میں جو اہمیت ہے اس کی، اس کو دیکھیں۔ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، حکمت والے نہیں، اور بہت سے اختیار والے نہیں، اور بہت سے اشراف، بلند مرتبہ والے نہیں، اور بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں، سن لے، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، بلکہ خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چنا ہے۔ کن کو چنا ہے؟ اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو، اس پر دھیان کرو کہ آپ کہاں سے بلائے گئے ہیں اور کیوں بلائے گئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اور پھر کہ حکیموں کو شرمندہ کریں گے۔ آپ بلائے گئے ہیں کہ آپ حکیموں کو شرمندہ کریں، آپ کے اندر ایسی قدرت نظر آئے خدا کی کہ وہ جانے کہ خدا ان میں
रहता है। ये बुलावे, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। आपकी जिंदगी कैसी थी और कहां से खुदा ने आपको चुना। आप गुनाह की दलदल में धंसे हुए और खुदा ने आपको अपनी तरफ बुलाया कि वैसे ना रहें। ये है बाइबल मुकद्दस में, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो और देखिए काम क्या दिया है। जी और खुदा ने दुनिया में कमजोरों को चुन लिया, कि जोरावरों को शर्मिंदा कर दिया। कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया, कि मौजूदों को नेस्त करें। मौजूदों को नेस्त जो समझते हैं हम बड़ी चीज हैं, लेकिन सच्चाई की तरफ ध्यान नहीं करते। बस अपने ही हुनर, अपने ही फन, अपने ही हिकमत पर क्या करते हैं, ध्यान करते हैं और समझते हैं शायद मैं जो हूँ मैं ही हूँ। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये साबित करती है अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। आपकी जिंदगी कैसे थी और सब अपनी अपनी तरफ निगाह करें तो क्या है, कैसी हालत थी। खुदा ने हमें उस गंदगी से निकाला और जब निकाला है तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है अपने बुलाए जाने पर निगाह कर। मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस बात को हम तक पहुंचाया। तो मेरे अजीजों, बुलाए जाने के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि अपने बुलाए जाने पर निगाह करो कि कैसी हालत है और देखिए बुलावा कैसा है। खुदा का कलाम हमें सिखाता है हम कैसी हालत में से कहां बुलाए गए। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाता है हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा के बेटे यीशु मसीह में अब की बादशाही में बुलाए गए हैं। हम जहां के हैं उस बात पर तवज्जो करनी है। और फिर खुदा का कलाम क्या सिखाता है, मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा हुआ रोमियो का खत, इसका नामा बाब 12वीं आयत, बरगज़ीदगी से क्या मुराद है, बुलावा। हमारी जिंदगी कैसी थी दुनिया में, जिस्म के लिहाज से खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुना है। तो देखें, मसीह होते हुए हम इस बुलावे में शरीक तो हैं, लेकिन अपने जिंदगी को देखें जो कि तू ही है। तो फिर वो इनाम कैसा, वो जिंदगी जो मसीह यीशु में हम समझते हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं करते। 12वीं आयत में क्या लिखा है, सुने जरा ध्यान से, ताकि खुदा का इरादा जो बरगज़ीदगी पर मौकूफ सुने, खुदा का इरादा जो बरगज़ीदगी पर मौकूफ है, ईमान पर मबनी ना ठहरे। ईमान पर मबनी ना ठहरे। इसका मकसद क्या, मकसद ये है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया। हमने कुछ अमल नहीं किया जिसकी वजह से हम रास्तबाज ठहर सके, लेकिन खुदा ने हमारे जिंदगी पर अपने फजल को, अपने रहम को उंडेला और उसकी बदौलत हम बरगज़ीदा ठहरे। और फिर पीछे आप ऊपर की आयत देखें तो इसका मकसद क्या खुदा का बंदा बयान करता है, हम उस वादे में खुदा के असली इरादे में शरीक हुए हैं और उस असली इरादे का जो मकसद है वो क्या है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखा दिए। जी क्या लिखा है, बल्कि बुलाने वाले पर, जी ताकि बुलाने वाले पर ये बरगज़ीदगी का जो इरादा है उसका वो उस पर मबनी ठहरे। तो इसलिए ध्यान करना है, तवज्जो करनी है इस बात पर कि मैं जब बुलाया गया हूँ तो अपनी इस बरगज़ीदगी को कैसे साबित करना है। बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है और खुदा के बंदा मुकद्दस पतरस रसूल ने इस बात को जाहिर किया कि इसको कैसे बयान किया जा सकता है। जी खुदा के कलाम में से पहला पतरस जब देखते हैं, मैं आपके सामने इन सारे हवालों को इसलिए रख रहा हूँ कि मैं और आप मिलकर खुदा के कलाम की इस बात पर ध्यान करें। पहला पतरस दूसरा बाब नामी से 12वीं आयत तक आप गौर करें तो यहाँ कुछ यूं मरकूम है, लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, ये खुदा का मुफ्त इरादा है और खुदा ने हमें अपने बेटे यीशु मसीह में बेवकूफों में से चुन लिया है। हमें इस दुनिया की खराबी में से अलहदा किया है। हम जो कुछ भी नहीं थे हमें असलाह किया है और जो कुछ उसने हमें दिया है हमने उसको साबित करना। बुलाए हुए यानी कि दुनिया में से अलहदा कर दिए गए, सब
से निकम्मे गुनाह की दलदल में धंसे हुए बरगज़ीदा, यानी खुदा ने अपने इरादे में हमें शामिल किया है। खुदा का जो इरादा जो बरगज़ीदगी यानी कि पाकीज़गी पर मबनी था, हमारी जिंदगी में से ज़ाहिर तो मुफ्त रास्तबाज है। और अब हम जहाँ रहते हैं, जहाँ रहकर हमने उसको साबित करना है, हमने साबित करना है कि हम कौन हैं। जी क्या लिखा है खुदा के कलाम में? जब इस बात पर हम ध्यान कर रहे हैं कि पहला बात तो उसकी आयत नंबर नामी को पढ़ा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो। सुन ले, आपको बुलाया, फिर उस इरादे में यानी कि गुनाह की दलदल से निकाला, और खुदा का जो मकसद था कि आप रास्तबाज ठहरे, बरगज़ीदा ठहरे। जी बेटा जी, आप बरगज़ीदा ठहरे, तो इससे क्या है? इसको साबित करना है, हमने ज़ाहिर करना है। और यहाँ मैं इस हवाले को पढ़कर एक मिसाल बताना चाहता हूँ। तो यहाँ लिखा है एक मुकद्दस कौम और शाही कायनों का फिरका हो, और लिखा है मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि इस आयत को जरा ध्यान से सुन ले और सबने मेरे साथ कहना, ताकि उसकी खूबियां, तुम एक मुकद्दस कौम हो, शाही कायनों का फिरका हो, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। क्या है? खुदा की खास मलकियत है। और फिर कहता है खुदा का बंदा, ताकि खास क्यों हुए हो, बुलाए क्यों गए हो, बरगज़ीदा क्यों ठहराए गए हो, कि इस दुनिया के लोगों के साथ अपनी सोचों को बस बांटते रहे और अपनी ही फिक्रों में खोकर खुदा के असली मंसूबा से खारिज कर दिए जाए। जी नहीं, बल्कि लिखा है क्यों उसकी खास कौम हो, ताकि उसकी खूबियों को ज़ाहिर करो, उसकी खूबियों को ज़ाहिर करो। जब मैं इस बात को लिख रहा, एक बात मेरे ज़हन में आई और आपने इसका जवाब देना। तो मैं मिसाल बताने लगा हूं, सवालिया तौर पर आपने इसका जवाब देना। अगर ये आम का दरख्त लगा होगा और उसकी एक डाली काटी जाए या हवा आंधी वगैरह से टूट जाए, गिर जाए, तो कोई डाली और लगे तो क्या वो किसी और दरख्त की होगी? जवाब आपको मैंने कहा सवालिया और मिसाल की। जी किसी और दरख्त की सेफ्टी लगेगी होगी, ऊंट कटा रखी नहीं है, कंडिया नहीं लग जाएगी। ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? पक्की कर लेगा। टीकर साहब सोची पाए हो जी, अगर आम का दरख्त लगा हुआ है, हाँ आंधी से कि उसकी डाली टूट जाए, गिर जाए, तो उसकी जगह पर कोई कांटों का कोई दरख्त लग सकता है, कोई किकर वगैरह। हाँ हो सकता है ऐसा। फल की नहीं बात कर रहा हूं मैं, डाली की कर जी। अच्छा अब हाँ नाम है जवाब देना, पूरी तफसील भी बताने। जी बात सुने, आम का दरख्त है, कोई भी लेने के लगा और उसकी डाली टूट गई है, हवा से मुश्किल परेशानी चले, कोई डाली टूट गई, मसला बन गया, तो डाली कोई और लगेगी किसी और दरख्त की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आम ही की डाली निकलेगी। आप रास्तबाज, आप बरगज़ीदा साबित करना है इस दुनिया की मुश्किलें, इस दुनिया की परेशानियां, इस दुनिया के मुसाइब, इस दुनिया की टेंशन आपकी रास्तबाजी और बरगज़ीदगी को दबा नहीं सकता कहीं। और ये सच बात है, खुदा का कलाम है। आप इसलिए बुलाए गए हैं, कहां से और किस बुलावे में शरीक है? खुदा की खास मलकियत बनने के लिए होंगे नहीं हैं। और क्यों है? ताकि अपनी बरगज़ीदगी और रास्तबाजी को साबित करें आप।
अपने बुलावे को साबित करे कि मैं गंदगी से निकाला हुआ हूं, गंदा नहीं। और क्यों? ताकि आप उसकी खूबियां जाहिर करें जो आप में रहता है। मैं जब इस हवाले को लिख रहा, आज दोपहर को जब मैं कलाम सुना, मैंने लिखा हुआ है, खुदा ने अपनी कौम को बनाया, खुदा ने अपनी कौम को बनाया। ज़बूर 132। और क्यों बनाया? वजह क्या है? अपनी कौम को बनाया और इसकी 13 आयत, ज़बूर 132, इसकी वजह है जो घर शख्स बनाता है वो उसी घर में रहता है। खुदा ने हमें बनाया और किस लिए बनाया है? लिखा है जी, क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद ने सिय्योन को चुना है। हाँ जी, खुदावंद ने सिय्योन को चुना और उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया। उसने उसे अपने मकसद के लिए पसंद किया। क्यों? ये हमेशा के लिए मेरी आरामगाह है। क्यों चुना और अपने लिए मुकर्रर किया है? कि हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं, घड़ी भर के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, मरते दम तक। क्या है? मेरी आरामगाह है। की मतलब है आरामगाह केड़ी हुंदी? पूरा दिन थक के आ जाते थे तारा किंदा, हाँ आराम। कभी कभी मैं आता हूँ जब, मैं कहता हूँ सिर्फ सारे दिन में अभी आकर मैं यहाँ और बड़ा अच्छा सुकून मिला। हमेशा खुदा ने सिय्योन को मुकर्रर किया, चुन लिया। क्यों? और आपने साबित करना है, खुदा का कलाम सीखा है, तब जाकर अपने बुलावे और बरगज़ीदगी को ज्यादा साबित करने की कोशिश करो। खोना चाहे इस दुनिया में। हफ्ते में कितने दिन हम इबादत करते हैं? हफ्ते में कितने दिन हम इबादत करते हैं? हफ्ते के कितने दिन होते हैं? चले कितने दिन इबादत करते हैं? कितने दिन? अच्छा जी, रोटी कितने टाइम खाने हैं? हाँ जी, और नहीं खाते, आटा महंगा हो गया। हाँ, बचत शुरू। किसी ने एक बात बताई, कहने लगा उसने बचत के लिए काम किया और बचत के लिए काम के बच्चे ने शर्त रख दी थी। कहने लगा बेटा, जो बच्चे दोपहर को रोटी नहीं खाएंगे उनको 10 रुपए दिए जाएंगे। बच्चों ने कहा ठीक है। अच्छा, अब शाम हुई है, बच्चों को 10 रुपए दे दिए, दोपहर को रोटी नहीं खाई। शाम हुई है तो बच्चों से कहने लगे, अब जो बच्चे रोटी खाएंगे रात को वो 10 रुपए की गलत नहीं होनी। अब जो दोपहर को लिए हुए थे, हाँ, बच्चों ने बड़े खुश थे, अब कह रहे कि खाना तो तभी मिलेगा 10 रुपए देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा? तो फिर चकन्ना होकर जवाब दे ना, परेशान जी। बाइबल मुकद्दस में सिखाती है, खुदा का कलाम सिखाता है, जैसे आम के दरख्त में आम ही लगते हैं, बुलाए हुए जिंदगी में झूठ नहीं हो सकता। खुदा का कलाम सिखाता है, ये खुदा का कलाम सिखाता है। अपने आप को धोखा ना दे, साबित करने की कोशिश करें कि आप बुलाए गए हैं। किससे? गंदगी से बुलाए गए हैं। और कहां बुलाए गए? गंदगी में नहीं। इस दुनिया में फिक्र तरह तरह की, नौजवान है, गैर शादीशुदा शादी की फिक्र है, कुड़ी कहती है, गोरी चिड़ी है, मोटी मोटी भी ना है, चल रही है ना बात। तो एक खानदान ने कहा मुझे, हमें मेरे बेटे के लिए रिश्ता देखे,
कुड़ियों ने काम कर दी होई ड्यूटी लगी होई खैर मैं बदली करवा रहा उम्र भी है नहीं कोई ना है ख्वाहिश है ना वालिदैन की तो ऐसी ऐसी फिक्रों में खोए हुए और ईमानदार को क्या कहा गया है जी किसी को याद है गैर शादीशुदा ईमानदार को क्या कहा गया है जे बेशोरे बेशोर की तलाश इश्तिहार केड़े वेखने इश्तिहार केड़े वेखने रिश्ते दे इश्तिहार ये बदनसीबगी नहीं है खो गए हैं इस दुनिया में मेरे अज़ीज़ों हम इस दुनिया की सोचो ख्यालों में हम हैं कौन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कहां से निकाले गए हैं खुदा का कलाम हमें सिखाता है खुदा का कलाम हमें इस बात के लिए तरबियत करता है और यहाँ सारी बातें वाज़ेह तौर पर कि आप एक बरगज़ीदा कौम हैं और खुदा के चुने हुए खास लोग हैं और क्यों चुना है उसने इसलिए चुना है कि उसकी खूबियां जाहिर है आम के दरख्त पर आम लगे तो आम के दरख्त की क्या है खूबी जाहिर होती वाह ते जे आम सही ना लगन अच्छे ना हो है की हो गया और जो सिदरियां लपना के पता नहीं क्या क्या तो वो उसकी खूबी जाहिर हो उसके फल से आप खुदा के बुलाए हुए हैं अपनी बरगज़ीदगी को साबित करने की कोशिश करें तब जाकर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कैसे साबित करना है बाइबल मुकद्दस में कोई मुश्किल बात नहीं है क्योंकि इसके लिए खुदा हमारा खुदा जो हमने हवाला पढ़ा क्या है ताकि हमेशा के लिए उसकी आरामगाह हो आपके अंदर खुदा रहता है मुकद्दस पालूस रसूल ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है उसका तख्त लगा हुआ है आपकी जिंदगी में वाजा दिया कि नहीं ऐड ना करें तुम ऐड ना करें तेनू अच्छा नहीं ऐड करें हाँ आती है कि नहीं आवाज ये है खुदा का तख्त जिसे कोई देख नहीं सकता जाहिर होता है आमीन हालेलुया ये है खुदा की मलकियत बुलाए हुए की निशानी है ये टटोले अपने आप को और अपने उस यानी कि इस जिंदगी को वो खुराक दे जो जरूरी है और इसके लिए वक्त निकाले और सारे रिश्तेदारों को छाड़ देंगे ना नौकरी नहीं छड़ी पक्की गल है ना क्यों उसके फायदे क्या हैं जी नौकरी छाड़ दी तो की होएगा क्योंकि उन्होंने तो नहीं मैंने देना आया आके ऐसा ही है यही कहेंगे ना उन्होंने केड़ा साडे घर आटा सुट्टू उन्होंने केड़ा ले फलानी चीज ले आनी क्योंकि आपकी ड्यूटी आपके पेट के लिए बंदोबस्त हो रहा है और आपकी फाकर आपकी रूहानी जिंदगी का बंदोबस्त है और फिर आप साबित करेंगे इस दुनिया में रहते हुए फिर कोई ताकत कोई दुनिया की कमजोरी आपको उस फल से रोक नहीं सकती उस मिरास में दाखिल होने के लिए ये मुकद्दस ने तजर्बा करके बताया लेकिन रूहानी तरक्की रूहानी फाकर कम से कम बाइबल स्टडी होती है जुम्मे को कोई आरज़ू नहीं है ते जे एक तोड़ा मिलना हो आटे का फिर 1650 रुपए का तोड़ा आटे का 20 किलो का तो मिलता है फिर कितने बजे फिर तो जिन करंट ले भी ना जाए हाँ पहुंचेगा कि नहीं पक्की गल तो किस खुराक से ज्यादा मोहब्बत है यसने का पानी खुराक के लिए हाँ फिक्र मेहनत का मतलब उधर ही ना लगे लोग कोशिश मेहनत का मतलब है कोशिश एक तोड़े नहीं छुट्टी भी कराएंगे 1500 रुपया लेकिन किसकी वैल्यू को हम खत्म कर यकीन करें जब मैसेज तैयार हो करना कल मैसेज आ गया तो मैंने देखा मैं मेरी बारी और की करो खुदा तेरी मर्जी हाँ ठीक है कहीं नहीं जाना आपने अपने रूहानी तरक्की के लिए अपनी कोशिश को जारी साबित कर रहे हैं आप और मेरे जिस दरख्त को पानी और खेत उसको संभाला ना जाए वो तबाह हो जाता है
से आंधियां खत्म कर देती तो तख्त खुदा का उसकी जगह से हटाया जाता है उस मुकाम से। जी इसको पढ़ते जाएं तो यहाँ जो कुछ लिखा है उस पर तवज्जो करें। लिखा है ताकि खुदा की खास मलकियत, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करे जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया, इसलिए कि तुम कोई उम्र हानि, इसलिए कि तुम पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की, सुन लो, किसकी उम्मत हो, किसकी उम्मत हो, मरद हो मेरे दिलों, जिसके हम हैं वो हमारे लिबास से, वो हमारी बातों से, हमारी रफाकत से जाहिर होना चाहिए। यहाँ चर्च में बैठे तो बाहर जाके जनानियां लड़न बैठ मर जाता हूँ, गाल कर उसने गाली निकाली तो मैंने गाली कटी है, मैं क्या करना है? हमें तारीकी के कभी बर्जीदगी जाहिर हो रही है, साबित कर रहे हैं आप। उन्हें गाल कटी है, गाली के बदले गाली तो हम बाकी तो मैंने कहनी है तेरी मां भी आनी, तेरी भैन भी आनी, तेरी कुफी भी आनी, तेरी ताई भी आनी, कितनी होगी? साबित करनी है, बरकसीदगी को बुलावे को साबित करना है कि ये दरख्त अच्छा फल लाने वाला है। इसकी डाली अगर टूट भी जाए तो वही डाली निकलेगी जिसके साथ ये कवंद है, अवस्था है, हमें वही टेस्ट होगा। इसलिए अपने आप को समझे, हम इस दुनिया के लोगों के साथ मिलकर वो झूठ बोलते हैं, असि भी कहने सारे झूठ बोलते हैं, वो बिजली चोरी करते हैं, असि भी कहने कर ली की हो गया, वो ऐसा करते हैं, असि भी कहने कर ली, असि उम्र नौकरी करने ले अपनी उम्र को ना छाड़ते। किसको धोखा देना? हुकूमत को, हुकूमत को भी दे रहे हैं ना, तो साथ खुदा को भी दे। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े मसले हैं मेरे दिलों, अपने आप को टटोले। और खुदा ने हमें इसलिए बुलाया, तुम पहले कोई उम्मत ना थे लेकिन अब किसकी उम्मत हो? खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। साबित करें इस बात को इस दुनिया में रहते हैं और अपने दिल में इस बात को ठान ले कि मैं ही हूँ खुदा का बेटा। आमीन। ये है, साबित करें इस दुनिया में, क्योंकि खुदा ने आपको इसीलिए इस दुनिया में रखा। मुसीबत जानती नहीं थे तो उठ के बड़े अजीब इस्तेमाल कर देना, मुख्तलिफ। एक जगह में चला गया, कहने लगे सूदा काले कार नहीं जाना, तो सूदा काले को क्या कहती है कि कर लो, चीजा नहीं आती, छुरी रख लो सराने थले या माचिस रख लो सराने थले, वो एक दबके कर लो। कैसी बातें हैं ये, कैसी बातें हैं ये मेरे दिलों। बारिश नहीं रोकती, ताला मार सुट दो, की कर दिया? क्या ये मस्जिदों के काम है? रिश्ता नहीं मेरे मुंडे का उठे होन दिया, रिश्ता कराना है, की करना बाबे नू कहना है कि ये 5000 रुपये लै गया, वो भी जाता है, वो भी जाता। मेरे अजीजों, हम इस दुनिया के इन लोगों के साथ अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। और देखें, पहले तुम कोई उम्मत ना थे लेकिन अब तुम पर रहमत नहीं हुई थी, लेकिन अब तुम पर रहमत हुई है। खुदा ने अपना रहम किया है तुम पर, और खुदा आपके अंदर रहता है। खुदा का कलाम सिखाता है मेरे से, और फिर खुदा का बंदा कहता है क्यों हुई है ये रहमत? ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों पर
ख्वाहिशों से क्या करो, तो ये साबित होगा आपकी जिंदगी से आप बुलाए हुए हैं, आप बरगुज़ीदा हैं, आप खुदा के बेटे हैं। आप गाली को खाकर गाली नहीं दे रहे, आप दूसरों के साथ रफाकत तो करते हैं लेकिन उनके जैसे काम नहीं करते, ज़ाहिर करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है और इससे फायदे बाइबल मुक़द्दस में हमें बयान किए गए हैं। और पढ़ते जाए तो लिखा है, जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से क्या करते हैं, लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से क्या हो, हाँ, जिस दिन वो सामने आ जाए, भेद खुल जाए। मुलाहाजा के मतलब है जाहिर हो जाना, भेद खुल जाना, जब पता लग जाए है कौन, पता लग जाए जिस दिन आया हो जाए बात, तो खुदा के नाम की तमजीद, जब पता चल जाए मेरा काम क्यों पड़े, ये तो उस शख्स ने बदल किया, अच्छा वो कौन है, वो आया हो जाए तो खुदा की तमजीद। वो कौन है जिसने गाली के बदले गाली नहीं दी, मैंने सुना था लेकिन वो उसको मैं जानता नहीं कौन है, वो मसीह है। वो कौन है जिसने उस शख्स के कहा चोरी की चीज रख दे, वो कौन है, जाने मेरे अज़ीज़ों, ये है बरगुज़ीदगी को साबित करना। लेकिन अब दुनिया की ख्वाहिशें इस कदर बढ़ती जा रही हैं, और ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस को देखिए आप, दुनिया ही के लोग, लिखा है नूह पैदाइश की किताब में नूह के वक्त हुआ क्या, वो भेद यूं ही लिखा है पैदाइश की किताब 6 बाब में, जब रूए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे, कौन बढ़ने लगे, बहुत बढ़ने लगे, और वहां लिखा उनकी बेटियां हुई, उनकी, यानी कि अब बेटी ऐसी नहीं है लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस का मतलब है, यानी कि उनकी ऐसी ख्वाहिशात जो हमेशा के लिए उनको बना नहीं सकती, चंद रोजा ऐसी ख्वाहिशात, तो बेटियां हुई। हालांकि आप देखें तो ऐसा तो नहीं पूरी दुनिया में कोई हिंदू है, मुस्लिम है, या कोई क्यों ना हो, या वो बुतप्रस्त लोग क्यों ना हो, वो जो खुदा को जानते भी ना हो, वो कहते खुदा कोई है ही नहीं है, ऐसे क्यों, उनकी बेटियां ही सिर्फ होती, ऐसा तो नहीं, लेकिन मतलब क्या यहाँ क्यों आया कि उनकी बेटियां ही हुई, औलाद तालीम की तरफ इशारा, और ये बेटी से मुराद वो तालीम मायनी है, ठीक है, बेटी ये वाली बेटी की बात नहीं कर रहा, रूहानी तौर पर जो बेटे, वो तालीम जिनसे नुकसान होगा, जिनसे यानी कि वो जो चंद रोजा होगा, खुद बनाई, आदमियों की बनाई, खुदा की नहीं, खुदा, और खुदा के बेटों ने देखा कि वो खूबसूरत है, जिसको जिसने चाहा ब्याह दिया, और हम रूहानी तो खुदा के बेटे होते हुए किन की ख्वाहिश करते हैं, किन की ख्वाहिश, आदमियों की बेटियों की, जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर ध्यान करें। हम जैसे इस दुनिया के लोग तारीकी में चलते हैं, हम भी उसी तरह चलना ज्यादा पसंद करते हैं, अंदर ही अंदर, तो इसलिए साबित नहीं होती वो बरगुज़ीदगी, खुदा का वो इरादा जो बरगुज़ीदगी पर मबनी है, जाहिर नहीं हो सकता मेरे अज़ीज़ों। इसलिए जरूर ध्यान करें, तवज्जो करें इस बात पर, और इसके फायदे यहाँ दर्ज हैं। आए मेरे साथ सवाल को पढ़ ले, जो मरकज़ी हवाला था, दूसरा खत, सुन ले, यहाँ आयत नंबर मरकज़ी हवाले हैं, इनको पढ़ेंगे। बस भाइयों, अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर गिरोगे नहीं, रुक नहीं जाओगे। ठोकर का जो मतलब है गिर जाना, रुक जाना, या फिर ठोकर का मतलब है
ऐसी दीवार जो दरिया के पानी को आगे बढ़ने से रोक दे, ऐसी दीवारें नहीं खड़ी होंगी मेरे दिल। आप बढ़ते ही जाएंगे जब आप इसको साबित करने की कोशिश करते रहेंगे। आप बड़ी जगह कोशिश में पता है कभी नाकामी भी हो जाती, कोई बात, लेकिन कोशिश जारी रखने वाले कामयाब हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। कोशिश जारी रखें, कोशिश करो, और इससे क्या होगा? खुदा का कलाम सिखाता है, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए। हालेलुया। बेइज्जती कितना दी होनी? एक दी इज्जत, एक दी बेइज्जती होनी। जो दाखिल नहीं होते बेइज्जती होती हुई होनी। जिन्होंने बुआ नहीं खोलन दिया, 5 कुवारियां बुआ खड़कांडियां बाजी नहीं इधर आंदी। हाँ जी 5 कुवारियां बुआ खड़कांडियां, 5 दाखिल हो गई। बेइज्जती कितना दी? जिन्होंने बुआ, इज्जत कितना दी? जिन्होंने बुआ खोलिया। हालेलुया। तो आप बड़ी इज्जत के साथ दाखिल होंगे, और अगर अपनी उस बरगज़ीदगी बुलावे को आप रोके रखेंगे, आप ये जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को जांचें, ध्यान करो, और इबादत में बैठकर सोचो में ना पड़े, जो कुछ सीखते हैं उस पर ध्यान करो, और फिर तवज्जो करें कि मैंने क्या करना, मैं हूँ कौन और मुझे कैसा रहना चाहिए। हमें पता है क्रिश्चियन चेहरे तो नजर आ जाते हैं, बोलने की लोड़ ही नहीं होती, पता चल जाता है। अच्छा क्या हम इस देश में रहते पता लगता है कि सिया अगर खुद भूल जाए तो दूसरे तो बता ही देते हैं, दूसरे तो बता देते तुम कौन हो। तो इसलिए अपने आप को देखें कि आप कौन हैं, और भूले नहीं, और अपनी बरगज़ीदगी और गुलामी को ज्यादा साबित करने की कोशिश करें, क्योंकि इसका बड़ा हमेशा हमारी जिंदगी को बनाता है। आज के कलाम की वसीला से हम सबको बड़ी